सो विल पहले रिवीजन कर लेंगे 2-4 मिनट और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हाँ सो तो विल स्टार्ट। थैंक यू। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग है इसमें? हाँ है, ध्रुव प्रभु जी कर रहे हैं। सो वी कैन स्टार्ट देन। ओम अज्ञानतिदन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सरललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा। राम 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 हरे हरे। So yeah, so yesterday we saw that Bhavata comes in Bhishma Parva, and it is written by Lord Ganesh as told by Srila Ved Vyas ji. And in that Krishna speaks around 550 74 shlokas. Second slide. uh, Arjuna speaks 84 shlokas, Sanjaya 41 shlokas, Dhritarashtra only speaks the first slok. So total there are 700 shlokas. So भगवत गीता में 700 श्लोक है टोटल, उसका ये सीक्वेंस है. And yesterday we started with the first chapter of Bhagavad Gita, that is observing the armies on the battlefield of Kurukshetra. So in that we saw the background, how this has come into picture, and we know that there were Kuru dynasty. There were two brothers, Pandu and Dhritarashtra. So पांडव और धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उसके बीच में ये युद्ध चल रहा है. दिस इज द वॉर गोइंग बिटवीन बोथ द सिबलिंग, बिटवीन द Dhritarashtra and Pandu. So that we saw the first verse, which was Dhritarashtra Uvacha Dharmashetre Kurukshetre Samaveta Yotsava Mamaka Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya. So Dhritarashtra said, O Sanjay, what did my sons and the sons of Pandu do, having gathered with the desire to fight at Kurukshetra, the place of Dharma? So ये हमने देखा, and then we saw some points from the verse. So we saw that how Dhritarashtra is asking such an irrelevant question. So in first two lines it says that they assembled to fight, and then he says that what did they do? So what was the problem here is that he was very uncertain, and he didn't understand that what was the effect of the place on the his sons and the sons of Pandu. So one side he was thinking that due to the association with the great place, the evil Duryodhana and company may give up their anger and take on the path of dharma. Uh, and secondly, he was thinking, आगे जाओ, next slide, next slide, या हाँ, और उसके बाद हाँ बस. और सेकंड, या तो इसके ऊपर वाली स्लाइड, एक ऊपर, हाँ बस इधर, या तो ऐसा हो सकता है कि पांडव जो है ना, दे विल फॉलो धर्मा एंड बोल सोचेंगे कि चलो सब कुछ दे दो, फॉरेस्ट में चले जाते हैं. एनीवेज यहाँ पे तो हम वैसे भी जंगल में रहे हैं, तो हमको तो आदत है. सो व्हाई टू हैव अननेसेसरी फाइट एंड लेट अस गो एंड स्टे इन जंगल. सो दिस वे ही हैड डाउट्स, एंड देयरफॉर ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन. एंड फिर हमने कल लास्ट स्लाइड जो हमने देखी, नेक्स्ट स्लाइड, तो उसमें हमने देखा कि what is the meaning of dharma kshetra kurukshetra. So dharma kshetra means that this is the place where
the dharma is produced. So this is a very good place. And because in a field, if we see, so in a field the weeds are being removed so that the crops can grow. तो इसमें भी जो weeds हैं, जो अपोजिशन में धर्मा में, उसको निकाल देंगे, and then the dharma will flourish. So this is what we saw yesterday. And the last point we discussed was Mamaka Pandavas Chaiva. So Dhritarashtra was not accepting his brother's son as his own. Actually, the both were Kauravas. लेकिन Dhritarashtra was very saying that my sons are only one who should rule the kingdom, and therefore he was not ready to give the kingdom to his brother's son, who were the actual persons who should rule the kingdom. So in this way, he was making difference, and we learned yesterday that in our life also, if we make such differences in life, we cannot grow as leader. If a leader wants to grow in life, he should not make such differences, Mamaka and Pandava. When studying in the same school or college, we can share notes, we can help each other, and both can grow. Life is a very long journey, so everyone needs to be there. So today we'll see the next verse, next slide. Sorry, next slide. So Dharma Kshetra Kurukshetra. बस. हाँ. So it's famous. It's a famous place which produced dharma. So ये जो जगह है ये धर्म है. See, this is also one good lesson we can learn, the power of places. So हर एक जगह की अपनी एक शक्ति होती है. Every place its potency, and every place has some power. And we have seen जब हम कहीं जाते हैं, if it's a very good place, we feel very nice. हम negative thoughts चले जाते हैं. And there are some places where we go, automatic some negative thoughts come in. Automatically we see there some problems is creeping in our mind. So place is a very powerful thing in our life, and इसलिए if we see when we study, we should consider the place. Environment is equally important for us to grow in life, along with the resources. जैसे if we are studying, but if we are studying in a place which is very noisy, जहाँ पे बहुत आवाज आ रहा है, people are chit chatting and all, then it's not a good environment for us to study, and therefore we should think that we should have a good environment and should change that environment. So इसी तरह this place where the fight is going on is a place for dharma. So for anything we'll do in life, we should have proper place. Adhishthanam is a word which is used in Bhagavad Gita, which will come further also. So it's a place where we should do the things. And then due to association with the great place, the evil Duryodhana and company may give up their anger and take the path of dharma. So therefore, if we see, even Duryodhana may have change of heart. So this change of heart is possible only due to association of great place or great people. And therefore, if we want to grow in our life as leaders of the next generation or as students, anybody, we should have very good association of people or devotees who are better than us. If we only associate people who are lower than us or who are not very much intellectual than us, then we'll also not grow. And therefore, this is very important. And the Pandavas are naturally following dharma, then both sides would have intelligence to see that they should not kill their own relatives and friends and would negotiate peace. So this is one more important lesson we should understand. If we want peace in life, if we want peace in life, if we want peace in society, then we need good people. If the general population or the proportion of population which is there in the mass of whole people is not good, we cannot expect peace. And this point will again come further also, that nowadays when we see that there are a lot of war going on, and in school, college also, it's a lot of disturbance. So there's a specific way in which good population comes into this world. And if we also practice such things, then only we can have such peace because of having good population in the world. Otherwise, there will always be chaos. There will always be chaos
and therefore anything we should see that there is a cost, there is a different what do we say, before if we see, if we see some result, then there is some cause behind this. And therefore if we see any community, like if we see Indians when they go outside, जब भारतीय लोग बाहर जाते हैं ना, तो उनको अच्छा जॉब मिलता है, और people prefer Indians in job place also. Why? Because Indians have, या भारतीय लोग जो होते हैं उनका परिवार बहुत ही अच्छे संबंध में रहते हैं. So there are less chances of fighting in the offices. There is less chances that he's drunk and he'll do some nonsense, he'll break something, and the chances are less. And therefore we should see that how we can also continue this culture which we have got from our ancestors. Next slide we see the points from cognitive purpose. This only the which is that. Yeah. So externally desired to show Sanjaya that he would be relieved if this were so. So externally, Dhritarashtra wants to show that, oh, if there is no fight, how it would be good. There nobody will fight and both the parties will be happy. But internally, however, he found it hard to restrain his depression. For if there were a consolation, then it would be difficult for his sons to claim the kingdom. So see, this is a fight which we have always in the life. ये हमेशा हमारे जीवन में एक लड़ाई रहती है. We have two different thoughts going on. अच्छा करे बुरा करे, अच्छा करे बुरा करे. ये देखिए एक्सटर्नली है ना, धृतराष्ट्र बता रहे संजय को कि अगर दोनों जन पीस साथ में आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, ये कुरु डायनेस्टी बहुत आगे बढ़ेगा. लेकिन अंदर क्या सोच रहे, अगर दोनों पीस होंगे तो मेरा बेटा राज्य कैसे करेगा. सो अच्छा है कि झगड़ा हो जाए. सो लाइक दिस ऑल्सो ना, हमारे मन में है ना हमेशा द्वंद्व रहता है, कोई भी चीज के लिए हमेशा द्वंद्व रहता है. हम एक साइड सोचते हैं, अगर कोई मदद कर मांगने आया, समझो कोई आया कि अरे कैन यू गिव मी योर नोट्स, आप इतने अच्छे नोट्स बनाते, इफ यू गिव मी योर नोट्स इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू स्टडी. तो एक साइड हम क्या सोचते, हाँ अच्छा दे देंगे तो अच्छा है ना, इट विल बी गुड, इट्स अ पायस एक्ट टू गिव. और सेकंड साइड क्या मन सोचता है, अगर इसको दे दिया ना और इसको मेरे से ज्यादा मार्क्स आ गए ना और मुझे कम मार्क्स आए ना एग्जाम में, तो क्या होगा कि कल है ना सब लोग बोलेंगे देखा इसने नोट्स अच्छे बनाए और बाजू वाले को ज्यादा मार्क्स मिल गए, तो सब लोग थू करेंगे, तो मैं नोट्स नहीं दूंगा. नोट्स कब दूंगा, बाद में दूंगा. So this is a internal dilemma. This is not a dilemma in the heart of Duryodhana. This is an internal dilemma which happens with us every day. हर दिन हमारा चलता है. समझो somebody comes to us and ask कि चलो कुछ मुझे पैसे चाहिए, I want some money. So हम दो बार सोचेंगे, अरे इसको पैसा दे दिया, कहीं वापस नहीं दिया तो फोकट में नुकसान हो जाएगा. और एक साइड सोचेगा अरे it looks genuine, मेरा दोस्त भी है, देना चाहिए. So this is always a case with us when we are always in the two minds, and therefore this Bhagavad Gita is helpful, which will help us to take right decision at the right time. So this Bhagavad Gita will sharpen our intelligence to think and to understand the proper place, proper time, and proper person. Who is this person whom we should give and who is the person we should not give? What is the proper place and time where it should be given, where it should not be given? So this all aspects will be coming further, which will be clarifying all these things further. As Bhishma is on our side, be defeated by Arjuna, it is better that we fight than that let that happen. So now Dhritarashtra is thinking Bhishma Pitama is in our side and he is the greatest warrior on earth. So if he is on other side, let this war happen. Because he thinks that because Bhishma is there with us, we will win. So in the whole scene, if we see now, we'll see further also, Duryodhan, Dhritarashtra, this both persons, ये दोनों लोग है ना, they take into account each and every person except one, that is Krishna. Because Krishna ने कहा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तो they doesn't consider him as present in the opposite army, and that is the biggest mistake which they do. So it is not suitable, however, to show
such desires externally. So ऐसे desire जो है ना हम लोग बाहर दिखाते नहीं है. If we have some wrong desires ना, हम लोग बाहर से आप पूछोगे how are you, I'm very fine. हम लोग we are always try to show, हम लोग हमेशा क्या करते जीवन में अपना अच्छा चेहरा ही लोगों को दिखाते. If you see any advertisement, what will you see? If you purchase this product ना, then you will become very happy. बस यही मैसेज हर एड में आता है. वो कुछ भी खा ले, कुछ भी पिए, चाहे चॉकलेट खाए, गाड़ी ले, कुछ भी करे, वो हमेशा हंसता रहेगा, वो हमेशा खुश रहेगा. सो ये जो दिखाने का चेहरा है ना, दिस इज एडवर्टाइजमेंट गिमिक, दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट फंडा. इफ यू सी एनी एड ना, उसमें एडवेंचर दिखाएंगे दिखाएंगे और दिखाएंगे बहुत खुश है. एक वन केस हैपेंड, एक जन ने ना वो फेयर एंड लवली एड आता है ना, जिससे वो आता है कि वो बहुत गोरे हो जाते. सो 1% ट्राइड, इतने सारे फेयर एंड लवली रोज यूज करके हुआ, कुछ महीने साल बीत गए, वो गोरा हुआ नहीं. फिर केस कर दिया, बोला इतना आप एड में दिखाते हैं कि वो तो वो फेयर एंड लवली का आने का उसको अच्छा जॉब मिल गया, क्या हो गया उसका, मेरे साथ तो हुआ ही नहीं. सो दे नो अगेन एंड अगेन. इफ यू सी ऑल दैट, कोई भी एड ले लो, चाहे किसी भी चीज की हो, सी सम आर रियली वेरी नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ ओनली, बट स्टिल दे विल शो दैट इफ यू वांट दिस you should go this. So if you see in movies also now, they will show that the hero is a very dynamic person, he is the most good person, but then he will again come in ads and show that drink this, eat this, and we know the things which are shown in ads are not good for our health, but because we have related that person which is in ad with the person who is on the movie, which is not real, the movie is illusory. If you see the first slide of the movie, it shows that all the characters are fictitious, there is nothing relationship with living or dead, but still because we are seeing that movie, we think that that person is real, and the hero which is shown in the movie, जो हीरो दिखा रहा है ना, वो रियल में हीरो है, और इसलिए वो जो करता है हमें वो करना चाहिए. और बाद में जब उसका एड देखते हैं, वो बोलता है कि हाँ ये खाओ, फिर ये पियो, वी आर रियली ऑन द रॉन्ग वे. तो ये हमेशा समझना चाहिए, जो चेहरा दिखता है वैसा, असं मराठी में म्हणा है, दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं. जैसा दिखते वैसा होता नहीं है, इसलिए वो फंसते. और सी दुर्योधन, धृतराष्ट्र इज अ किंग एंड ही नोज इज वेरी वेल, और इसलिए उसने असली चेहरा दिखाया नहीं. बट संजय जो है ना, ही इज ऑल्सो नॉट अ ऐसा ऑर्डिनरी गाय नहीं है. सो द वे धृतराष्ट्र सेड एंड ही न्यू, ही अंडरस्टूड व्हाट धृतराष्ट्र मेंट. धृतराष्ट्र क्या कहना चाहते हैं संजय को आराम से पता चल गया. ही न्यू वेरी वेल कि धृतराष्ट्र क्या बोलना चाहते. सो अ गुड हियरर, a good person is one who can know the desires of other person without them telling us. समझ में आ रहा है? अगर आपको जीवन में सफल बनना है, अगर जीवन में सक्सेस चाहिए, तो अनस्पोकन क्या है वो पता होना चाहिए. जो लोग बोलते वो तो पता होना चाहिए, बट जो नहीं बोलते उस पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए. बिकॉज most of the communication in this world, if you see, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखो ना, if you see the verbal and non-verbal communication, 55% से ज्यादा the communication is non-verbal, it's not spoken. verbal communication very less in life. so इसमें भी अगर आप देखोगे ना, तो धृतराष्ट्र ने जो बताया वर्बली वो बहुत कम है, बट संजय ने जो अंडरस्टूड किया, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके हाव भाव देख के समझ गया कि व्हाट इज एक्चुअली मीनिंग. तो इसलिए फॉर अस ऑल्सो इन लाइफ ना, अगर कोई बोलता है, टीचर्स बोलते हैं आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, द वे यू परफॉर्म द एग्जाम्स. सो इज इट ट्रू और नॉट, वी शुड कम टू नो जस्ट नॉट बाय हियरिंग बट ऑल्सो सीइंग द एक्सप्रेशन ऑफ टीचर फेस, कि हाँ टीचर सही में बोल रहा है कि हमको मस्का लगा रहा है कुछ तो ये लगाने के लिए. So this non-verbal part which Sanjay understood is a very important critical factor for our success in life. ये हमेशा याद रखना चाहिए. And for us to grow, this is very important. If you see all the leaders, they have this ability to read the minds of others. What is there in the mind? इसलिए बहुत बार बोलते हैं मन के सच्चे होने चाहिए, मन में खोट नहीं होनी चाहिए. ऐसे बहुत we use so many times of words. But how do you come to know? So this is the way the release of show. So then the first verse spoken by Sanjaya, it is a second verse of Bhagavad Gita
chapter 1. Sanjaya uvacha deshva tu pandavanikam vyudam duryodhanastada acharyam upasangamya raja vachanam abraved. Sanjaya said, seeing the army of the Pandavas troops, Duryodhana approached his teacher Drona and spoke these words. So Sanjay ने तुरंत Sanjay told to Dhritarashtra that time only that see your son Duryodhan is not going to make any peace agreement. वो peace नहीं करने वाला. And that's why Sanjay is saying that see the array of Pandava troops, Duryodhana approached his teacher Drona and spoke the following words. So where is the Dhritarashtra going? To his teacher Drona. And therefore, because he is going to his teacher and not to the Pandavas, that means he is not going for the peace agreement. तो वो peace के लिए नहीं जा रहे. So indirectly उसके आधा चिंता तो बता दे कि नहीं देखो ये जो दुर्योधन है ना वो समझौता नहीं करने वाले. डोंट वरी, ये जो असर है इस जगह का वो दुर्योधन पे नहीं होने वाला. एंड सेकेंड, सो I think which was next slide. So we should see the points from the commentaries. The pious Sanjaya could understand that Dhritarashtra, blind from birth but having the eye of wisdom, was now blind with illusion because of his loss of wisdom concerning dharna. तो इसमें क्या है, संजय है ना, he could understand that Dhritarashtra is actually blind from birth, but again he is also blind that he cannot follow the wisdom, and therefore he was worried that his son may not give the kingdom to Pandavas. So he's saying that he was thus worried that his son would give the kingdom to the Pandavas. Therefore, understanding this, Sanjaya, fixed in dharma, gave satisfaction to Dhritarashtra by saying that his son would certainly not give the kingdom to the Pandavas. So in this way, Sanjaya is telling that this will not going to happen. So don't worry. Don't worry, Dhritarashtra. The war is going to happen. Don't worry. And now your son is going to plan with the Dronacharya that how to now face this army. So next slide. So here यहाँ पे ना दुर्योधन को राजा बताया गया है. एक्चुअली राजा कौन है? धृतराष्ट्र राजा है. एंड ये जो दुर्योधन है, ही इज लाइक अ प्रिंस, ही इज नॉट अ किंग नाउ. मे बी युधिष्ठिर राजा है, ही इज एक्चुअल राजा, बट यहाँ पे he is being called as Raja. So why? So we'll understand this. So इसमें just give me 1 minute. Okay, just minute. देख लिया, सेकेंड लेयर पे मीनिंग और देखा, थर्ड लेयर पे और देखा. एंड इफ यू गो डीप एंड डीप एंड डीप ना, यू विल फाइंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट मीनिंग्स टू द सेम वर्ड्स. एक वर्ड के ऊपर ही लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मीनिंग है. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. अर्जुन को है ना कहीं कहीं पे कहते हैं कि यू आर भरतर्षभा, कहीं पे कहते हैं अर्जुन यू आर पृथा, द सन ऑफ उसकी मतलब एक मदर का नाम पृथा था, तो पार्थ उनका नाम है. Then somewhere is told that your name is Gudakesh. So these different words are spoken for the same Arjuna, but it conveys a lot of meanings. ये जो same शब्द बोला है, लेकिन इससे क्या है, अलग अलग मतलब निकालते हैं. जब वो कहते हैं कि आप पृथा के पुत्र, मतलब क्या है, अरे अपनी माँ को देखो, उसने कितना सहन किया और उसने सब कुछ किया, लेकिन यू भाग रहे हो रणभूमि से, इतना भी देख नहीं सकते, क्या प्रॉब्लम है? फिर भारतवर्ष बोलते हैं गुड़ाकेश के थे. सो गुड़ाकेश मीन्स वन हु हैज ओवरकम स्लीप. उसने क्या किया है, निंद्रा पे विजय पाई है. सो अर्जुन क्या करते थे, रात को भी वो धनुर्विद्या सीखते थे, दिन में भी सीखा, रात को भी सीखा. तो ही वॉज एम्बिडेक्स्ट्रस. अगर आज के समय में बोले ना, ही वॉज एम्बिडेक्स्ट्रस. एम्बिडेक्स्ट्रस का मतलब क्या है, राइट से और लेफ्ट से दोनों हाथ से समान काम करना. सो जब अर्जुन बाण छोड़ते थे, व्हेन ही यूज्ड टू fight with bow and arrow,
तो with the same speed and the same time he will shoot with the both the sides. मतलब अगर लेफ्ट से भी अगर एरो छोड़ा तो भी सेम पॉइंट को टारगेट करेगा जैसे राइट में टारगेट करेगा. सो दिस वाज द क्वालिटी ऑफ अर्जुन, एंड देयरफॉर we should go through layers of meanings. He had inner fear caused by seeing the strength of Pandava troops, which is shown by his personally approaching Drona. So अंदर से डर है, बाहर से एकदम वो एकदम खुश होके बता रहा है, एकदम आराम से बात कर रहा है, लाइक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं. जैसे एग्जाम आते हैं, एग्जाम इफ यू सी स्पेशली एग्जाम्स, बच्चों लोग की एग्जाम आती है ना, स्पेशली कॉलेज में वो सब, तो अंदर से डर है क्या पेपर आएगा, पढ़ाई नहीं हुई है नहीं, लेकिन बाहर से एकदम आइसक्रीम खाएंगे, कहते अरे मस्त मस्त एकदम चल रहा है, अच्छा आराम चल रहा है, मजे कर रहे हैं, खाएंगे. और लोगों को बाकी जो बाजू होता है, अरे ये भी नहीं पढ़ा क्या तूने, मैंने तो सब पढ़ लिया, तुझे ये भी नहीं आता क्या, और उसको 2-4 क्वेश्चन और पूछ के डरा देंगे ताकि उसका मॉरल और कम हो जाए. सो इफ यू सी दुर्योधन ऑल्सो ना, अंदर से उसके अंदर डर है, क्योंकि जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन देखता है ना, बोलता है क्या अरेंज किया है लोग ने, पांडवास हाउ दे अरेंज दिस सो वंडरफुली, जीतने का चांस नहीं, लेकिन बाहर से चलो देख के आते क्या हम लोग कर सकते हैं, वी हैव सो मच आर्मी एंड सो मच थिंग्स, सो हाउ डू वी गो. तो इस तरह ही इज गोइंग विथ द्रोणाचार्य, but he attempted to hide that fear by showing that he had come personally out of respect to guru. तो अंदर डर है, लेकिन बाहर से क्या दिखा रहा है, गुरु महाराज आप बड़े हैं जिससे मैं मिलने आया आपको, लेकिन अंदर क्या है, अरे देखो क्या हो रहा है. सी इफ यू सी द नेक्स्ट वर्स ना, वो बाहर आएगा कि अंदर क्या चल रहा है उसके. The act displayed by his clever use of politics, राजनीति, which has been indicated by addressing his राजा. तो इसलिए बहुत बड़े राजनीति वाले लोग थे ना, इसलिए उनको वो राजा बोला गया है. So he was called as राजा because he had that राजनीति. So we'll see the verse number 1.3 also. Next slide. So क्या कहा? So next last verse he said that Dronacharya, so Duryodhan went to Dronacharya. So what did he say? पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमताम्. O teacher, O आचार्य, see this great army. Pashya, Pashya means see, etam means this, Mahatim means this great army of Panduputram, the sons of Pandu. व्यूढम का मतलब होता है अरेंज इन बैटल. सो युद्ध करने के लिए आए हैं. सो व्यूढम मींस अरेंज, स्टार्टिंग हो रही है अभी, बाय योर इंटेंट डिसाइपल. सो तव धीमता शिष्यना, शिष्यना मींस डिसाइपल, धीमता मींस इंटेलिजेंस, एंड तव मींस योर. तो आपके इंटेंट डिसाइपल कौन है वो, ध्रुपद पुत्रेना. देखो he could have told the name of the person. What is the name? धृष्टद्युम्न. लेकिन वो क्या बोलते हैं, द सन ऑफ ध्रुपद. सी द पॉलिटिकल एंगल, see the thing, how he's saying, how he's speaking. He didn't take the name of Drupad. Why didn't he take the name of Drupad? Is because Dronacharya had anger for Drupad. दुश्मनी थी ध्रुपद से द्रोणाचार्य को, और ये जो राजा है कौन, दुर्योधन, भली भांति जानते थे कि दोनों का जमता नहीं है. तो गुस्सा दिलाने के लिए और उसके अंदर वो जुनून पैदा करने के लिए कि ये लड़े, जानबूझ के ध्रुपद का नाम लिया. देखो बताने का भी एक टेक्निक होता है. इफ यू सी सम ऑफ द स्पीकर्स इस तरह बताएंगे, इस तरह भाषण देंगे कि अंत में जो ऑडियंस है वही बोलेगा करना चाहिए ना, हाँ करेंगे, हम करेंगे. सो द ओनर्स इज टेकन नॉट बाय द स्पीकर, इज टेकन बाय द हियरर. जब हियरर ओनर्स लेता है कोई चीज का ना करने का, दैट इज हैविंग अ डिफरेंट इंपैक्ट देन द पर्सन हु स्पीकिंग गिव समथिंग. तो इसमें भी दुर्योधन ने जानबूझ के द्रोणाचार्य को क्या कर रहे, उत्साह दे रहे, अंदर से एंगर पैदा करे ताकि वो लड़े. तो नेक्स्ट स्लाइड. सो विल सी सम कमेंट्रीज सो अंडरस्टैंड why he said what he said. Pashyetam Mahatim Chamu. This verse relates the words spoken by Duryodhana.
thinking that Drona would not fight against Yudhishthir and his brothers because of great affection, in order to produce some anger in Drona towards them, he revealed the Pandavas' disrespect for Drona. So सबसे पहले क्या किया, वो क्या बोला, देखो किसने अरेंज किया है, ध्रुपद पुत्र ना तव शिष्य धीमता। तो पश्चिताम देखो, पांडु के पुत्र जिन्होंने आपसे शिक्षा ली है, आपने उसको पढ़ाया, आपने बड़ा किया, सब कुछ सिखाया, अभी क्या कर रहे वो, आपके सामने खड़े, उनकी जरूरत कैसे हुई। जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, वही बेटा अभी हमें घर से बाहर निकाल रहा है। गुस्सा नहीं आएगा आपको ऐसा सुन के? तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि देखो, जिसको आपने मारा, जिसको आप प्रेम दे रहे, जिसको आप इतना चाहते हैं, आप अपने बेटे को बहुत चाहते हैं ना, लेकिन देखो आपका बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है, आपका नाम खराब कर रहा है वो। जो दुर्योधन कह रहे हैं कि हे, जो आपके जो शिष्य है युधिष्ठिर महाराज, जिसको आप बहुत चाहते हो, वो लोग सामने खड़े हैं, तो अपना अफेक्शन छोड़ दो। अभी जितना पहले अफेक्शन था, अर्जुन ने बहुत किया होगा आपके लिए, युधिष्ठिर महाराज ने बहुत किया आपके लिए, द्रुपद को बांध के लेके आए आपके, जब आपने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा दो, लेकिन अभी वो भूल जाओ, क्योंकि अभी के समय में समय बदल चुका। एक समय पे जो दोस्त थे अभी दुश्मन हो चुके। सो टाइम के साथ व्यक्ति बदलता है। जहां पे आप इन्वेस्ट नहीं करोगे वो रिश्ते टूट जाएंगे। जहां पे आप लोगों के साथ नहीं रहोगे वो साथ छूट जाएगा। द स्कूल फ्रेंड्स विच आई हैड बिफोर, नाउ दे आर नॉट देयर। द कॉलेज फ्रेंड्स विच आई हैड बिफोर, अभी वो नहीं है। उसके बाद के बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे चेंज हो चुके, पुराने लोग नहीं है। तो कोई दोस्त समय के साथ परिवर्तन दुश्मन बन सकता है। इसलिए रिश्तों में हमेशा स्पेशल केयर लेनी चाहिए। अगर जीवन में ग्रो होना है तो मोस्ट ऑफ द वर्क इज इन रिलेशनशिप। एक्चुअल नॉलेज है ना, लाइफ में इतना काम नहीं आता जितना रिलेशनशिप काम आते। रिलेशनशिप EQ इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ। और आजकल तो AL जितने भी आ रहे आपका IQ तो वैसे भी ले रहे। तो EQ इमोशंस के साथ किस समय क्या बोलना है, किसको क्या कैसे कहना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत चीज समय पे गलत चीज बता दी तो सामने वाले दुश्मन बन जाएंगे। और यहाँ पे दुर्योधन जो है बता रहा है कि देखो सामने सब दुश्मन खड़े हैं। And their armies approach very close with arrogance, not considering your exalted position as a warrior and teacher. अरे देखो सामने वाले बहुत नजदीक आ गए हैं और आपकी जो एक पदवी थी उसका उन्होंने सम्मान ही नहीं किया। Seeing that you should recognize that disrespect. तो देखो अभी भी आपको दिख नहीं रहा कि वो आपके सामने आपका अनादर कर रहे, आपका अपमान कर रहे। देखो कि कैसा आपका अपमान हो रहा है। एंड दिस शुड बी अंडरस्टूड। अगर आप ये नहीं समझोगे तो नुकसान होगा। और नेक्स्ट स्लाइड। और उसके बाद क्या कहते, तव शीशन धीमता, द आर्मी हैज बीन अरेंज्ड व्यूडम बाय द सन ऑफ द्रुपद। किसने ये रचना की आर्मी की? द्रुपद के पुत्र ने। नाउ अ ब्रीफ हिस्ट्री बिटवीन Drupad and Dronacharya. Just a very short in 2 minutes I will tell you. तो ध्रुपद द्रोणाचार्य ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और दोनों ने एक साथ गुरुकुल में पढ़ाई की भरद्वाज जी के आश्रम में। So these were very good friends in the childhood. Both studied together in the ashram of Bharadwaj. So one is a Brahmana, another is a Kshatriya. So ध्रुपद महाराज है वो क्षत्रिय है और द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण है। कुछ समय के बाद द्रुपद ने कहा कि जब मैं राजा बन जाऊंगा मैं अपनी संपत्ति का एक हिस्सा आपको दे दूंगा, क्योंकि हम दोनों दोस्त थे। सो दिस इज व्हाट इज प्रॉमिस। दोनों बड़े हो गए, दोनों द्रुपद राजा बन गए एंड यहाँ पे द्रोणाचार्य जो है वो जाके शादी करते। बिकॉज ही वॉज ए ब्राह्मण, और ब्राह्मण कभी भी किसी की जॉब नहीं करते। एंड दिस इज द
गुड थिंग विच हैपेंस, पहले बहुत अच्छा था, अभी ये सिस्टम का दुरुपयोग भी और बहुत कुछ हुआ। सी, अगर ब्राह्मण जॉब नहीं करता इसका मतलब क्या हुआ, ब्राह्मण इज इंटेलिजेंस, जैसे ज्योतिष है ना, ज्योतिष ये वो, तो जब ब्राह्मण को अगर जॉब नहीं करता ना, तो ये सारी सर्विस हम बाकी लोग को फ्री में मिलती है। और जो गरीब जनता है ना, दे कैन ऑल्सो टेक दिस सर्विस फॉर फ्री बिकॉज द किंग इज प्रोवाइडिंग फॉर द ब्राह्मण। ये पहले का कल्चर था कि राजा जो है ब्राह्मणों को उसका जो भी दे देता था, या तो जो क्षत्रिय है या जो भी है ना, उसको अनाज दे देंगे, ये देंगे, ये सब दे देंगे। एंड ब्राह्मण भी ऐसे होते थे, अगर ज्यादा पैसा है तो बांट देंगे, रखेंगे नहीं, एक लिमिट से ज्यादा है तो बांट देंगे वापस, वो हमेशा गरीब जैसे रहेंगे। बट द थिंग व्हाट हैपेंड इज नॉलेज वाज फ्री, देयर वर नो चार्जेस फॉर द एजुकेशन सिस्टम। इस स्कूल कॉलेज में कोई चार्जेस ही नहीं थे, बिकॉज इंटेलेक्चुअल पीपल जो है उनका कोई टेक केयर कर रहा था, दे वर वेरी श्योर कि कल मेरे घर पे कुछ भी नहीं होगा तो भी मेरा कोई टेक केयर करेगा, तो मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है और लोगों को नॉलेज देना है। सो मेनी ऑफ द साइंसेस लाइक वैद्य आयुर्वेदा हो, या ज्योतिष शास्त्र हो, या धर्म शास्त्र हो, या न्याय शास्त्र हो, या कोई भी अलग शास्त्र जो भी हो, लोगों को फ्री में मिलता था पढ़ने के लिए। एंड लास्ट आफ्टर द स्टडी, उनकी इच्छा है जो उनको गुरु जी ने देनी है वो दे सकता है। मतलब एक गरीब आदमी रहेगा, वो बोलेगा एक फल ले लो, एप्पल ले लो, और आपने जो 10-15 साल मुझे पढ़ाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और राजा होगा तो शायद धन भी दे देगा, कुछ भी दे देगा, बट देयर वाज नो कंपल्शन कि एवरी ईयर यू टू पे दिस मच अमाउंट ओनली, ओनली 50,000 1 लाख, या इतना ही पैसा पे करना है तो ही आपका एजुकेशन मिला, नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। सो अ ब्रिलियंट चाइल्ड, अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो बहुत, उसको अवश्य he will definitely get a chance to study. तो स्टडी वॉज नेवर डिसअलाउड। बट अगर उस बच्चे में पढ़ाई करने की लायकात नहीं है, एंड व्हाट डिसाइड्स वेदर द चाइल्ड हैज द एबिलिटी टू स्टडी और नॉट, इट्स नॉट हिज इंटेलेक्चुअल पावर, इट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर विल डिसाइड वेदर ही शुड स्टडी और नॉट। ये समझ में आ रही है, बहुत क्रिटिकल है। देखो, अगर दो डॉक्टर है, एक डॉक्टर बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन साथ में आपकी किडनी चोर करता है, और एक डॉक्टर इंटेलिजेंट है लेकिन साथ में बहुत अच्छा कैरेक्टर भी है, किसको नॉलेज दोगे आप और किसके पास जाओगे? पहले वाले के पास या दूसरे वाले के पास? जो किडनी चोरी करता है या दूसरा जो ईमानदार है? पहले वाले के पास नॉलेज आ गई, और पहले वाला जो आदमी है ना, उसके पास जब जाने लगे तो क्या होगा, धीरे धीरे सबकी किडनी गायब हो जाएगी थोड़े टाइम के बाद। लेकिन दूसरे व्यक्ति की बात है, इसका गुड कैरेक्टर भी है नॉलेज के साथ, तो एक तो अच्छा डॉक्टर ने उसको अच्छा ट्रीट किया, प्लस वो एक्सप्लॉय भी नहीं करेगा। 100 रुपए का 200 रुपए, जैसे आप इफ यू हैव मेडिक्लेम ना, अगर आप हॉस्पिटल जाओगे बोले अरे इतना कम क्यों ले रहे हो, मेडिक्लेम है ना, लेट अस ये पूरा ये फैसिलिटी ऐसा करके ले लेंगे, ये नहीं करेगा डॉक्टर। सो दिस अ डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग्स, एंड देयरफॉर कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेक्टर अगर अच्छा होगा ना, तो वो व्यक्ति के साथ दोस्ती करना बहुत आसान है, वो व्यक्ति को सक्सेस मिलना थोड़ा ज्यादा आसान है जीवन में। एंड देयरफॉर वी शुड डेवलप दिस कैरेक्टर ऑल्सो अलॉन्ग विद इंटेलिजेंस। और ऐसा भी नहीं कि ओनली इंटेलिजेंस, अगर इंटेलिजेंस नहीं रहेगी तो चलेगा, उस व्यक्ति को पता नहीं कैसे काटना है, तो भी आप नहीं जाओगे डॉक्टर के पास, बोलेगा डॉक्टर को आता ही नहीं कुछ। सो ही शुड हैव इंटेलिजेंस, बट similarly he should also have good character, and that is what is needed. So ये क्या बोल रहे, जब द्रुपदा जब बड़े हो जाते और द्रोणाचार्य की सब ये शादी हो जाती है, सब हो जाता है, तो द्रोणाचार्य गरीब है, एंड वंस आफ्टर सम टाइम उसके जो बेटा था अश्वत्थामा, ऐसा हो जाता है कि उसके पास अभी कुछ भी नहीं है खाने को। एंड हिज वाइफ, जो द्रोणाचार्य की वाइफ, बोलते हैं आपके कोई दोस्त या कोई कम से कम कुछ तो मांगो ताकि हम लोग जीवित रह सके। सो द्रोणाचार्य जो ही वेंट्स टू हिज फ्रेंड्स द्रुपद, और याद कराते कि देखो हमारी दोस्ती थी, मुझे एक गाय दे दो ताकि मैं दूध ले सकूं और खिला सकूं। एंड द्रुपद व्हाट ही डिड इज ही इंसल्टेड द्रोणाचार्य लेफ्ट राइट एंड सेंटर। बोले कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, आप में और हमारे में कोई मित्रता नहीं हो सकती, we cannot be friends. And this was the time when, ये वो समय था जब द्रोणाचार्य ने बोला कि मैं इसका बदला लूंगा, लेकिन बाहर से चुप रहे, जो बोला थैंक यू, लेकिन अंदर से विल बना ली
कि अभी जब तक मैं द्रुपद को उसकी जो करनी है उसकी सजा नहीं दूंगा तब तक मैं नहीं रहूंगा. सो नाउ द्रोणाचार्य ब्राह्मण से क्षत्रिय का रोल ले रहे, एंड ही गॉट द वेपन्स फ्रॉम परशुराम जी. उनको वेपन्स मिला परशुराम जी से, एंड ही बिकेम द टीचर ऑफ कुरुस एंड पांडवास. तो जो दुर्योधन के 100 पुत्र है, सॉरी जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र है, दुर्योधन फ्रेंड सब भाई, एंड यहाँ पे युधिष्ठिर और जो 5 भाई है उसके ये गुरु बन गए. और ऐसी स्किल्स दी इनको, ऐसी स्किल्स दी कि दे वर लाइक डूइंग वेल. एंड आफ्टर द ट्रेनिंग वाज ओवर, जब इतने साल की तपस्या खत्म हो गई, सब ट्रेनिंग हो गई, तो बिकॉज दे वर द किंग के पुत्र है तो कुछ भी सकते, तो बोला क्या चाहिए आपको बताइए, हे द्रोणाचार्य आपको क्या चाहिए. एंड द्रोणाचार्य को याद था बहुत साल पहले कि द्रुपद ने वैसा ऐसा किया, तो ही आज आई वॉन्ट द्रुपद अलाइव, मुझे द्रुपद को यहाँ अलाइव लेके आ जाओ. तो पहले बहुत गर्व था अपने दुर्योधन को, तो दुर्योधन उसके 100 ब्रदर्स से सब साथ में गए और लड़ने के लिए द्रुपद से, ताकि उसको लेके आए. लेकिन द्रुपद ने इतना बुरी तरह हरा दिया, इतना बुरी तरह हरा दिया कि सारे 100 के 100 भाई ऐसे ही वापस आ गए. और जब ये हो गया उसका अर्जुन जो है वो युधिष्ठिर महाराज और जो 5 पांडव थे वो गए द्रुपद को, और घमासान युद्ध के बाद द्रुपद को पकड़ के द्रोणाचार्य के पास लेके आए. एंड देन द्रोणाचार्य का तो अभी आपका जो राज्य है वो मैंने ले लिया आधा, तो मैं भी राजा बन गया, आप भी राजा, मेरे पास राज्य आपके राज्य. तो अभी हम लोग गंगूतेली और राजा कुछ नहीं, हम दोनों राजा है, वी आर फ्रेंड्स नाउ. और द्रुपद को छोड़ दिया. एंड द्रुपद फेल्ट सो इंसल्टेड, द्रुपद को इतना बुरा लगा कि द्रोणाचार्य के इन शिष्यों ने मुझे भरा दिया. ही टुक ए वॉव, और ऐसा पुत्र मैं पैदा करूंगा कि जो द्रोणाचार्य को मार देगा. और फिर यज्ञ किया, तो यज्ञ में एक बेटी और एक बेटा, 2 लोग आते. सो बेटी वॉज द्रौपदी, एंड जो बेटा है उसका नाम है धृष्टद्युम्न. तो ये जो धृष्टद्युम्न है ये बड़ा होता है, ट्रेनिंग लेता है द्रोणाचार्य के पास ही, एंड नाउ ही इज फाइटिंग अगेंस्ट द कौरवास. और सामने जो व्यूह रचना की है सारे आर्मी की, ये धृष्टद्युम्न ने की है. और इसलिए जो दुर्योधन ना वो गाली दे रहा है द्रोणाचार्य को, देखो इतना सब नॉलेज दे दिया सामने वाले को और आपके सामने लड़ रहे. कौन है? आपके दोस्त के बेटे, देखो क्या कर रहे हो, द्रुपद के पुत्र है. तो ऐसे करके उनको ये कर रहे. एंड देन दो यू नो नोइंग he was an enemy, taught that the son of the art of fighting, that was your foolishness. तो देखो, एक तो आपको पता है कि आपके दुश्मन के पुत्र, you very well knew that he is the son of your enemy. So this is another quality of a brahmana. Brahmana is very liberal. ब्राह्मण इतने लिबरल होते हैं ना, अगर उनको पता भी हो, अगर उनको पता भी हो कि सामने वाला मेरा फायदा नहीं करेगा, बट इफ इट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर कंडक्ट, तो उसको नॉलेज दे देंगे. सो यहाँ पे द्रोणाचार्य न्यू वेल बिफोर इन हैंड कि ये जो द्रुपद धृष्टद्युम्न जो है, ये द्रुपद के जो बेटे है, उसको जो भी मैं नॉलेज देने वाला हूं वो आके मेरे पे यूज करके मुझे मारने वाले आगे जाके. सो दिस इज द वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ब्राह्मणा, दिस वी शुड अंडरस्टैंड. ये बहुत अच्छी क्वालिटी है ब्राह्मणा की, ये हमें समझनी चाहिए. और उसके बाद में आगे क्या है, एंड ही द एनिमी इज वेरी इंटेलिजेंट धीमता, हैविंग लर्न फ्रॉम यू हाउ टू किल यू. और देखो आपका दुश्मन, आपका दुश्मन इतना बुद्धिमान है, आपसे ही सीखा कैसे माना है. सी दिस इज द क्वालिटी ऑफ पांडवास एंड दुर्योधन में क्या फर्क है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. व्हेन द बैटल स्टार्टेड ना, जब लड़ाई चालू होती है ना,
तो दुर्योधन जो एकदम बोस्ट कहता मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, ये है। और युधिष्ठिर महाराज सबसे आशीर्वाद ले रहे थे कि हम लड़ाई जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद दो। और एक-एक को पूछ रहे थे कि हे भीष्म पितामह आपको कैसे मारे हम? हे द्रोणाचार्य आपको कैसे मारे हम? और सब लोग तथास्तु बोल रहे थे। हाँ, आपको पता, हाँ, आपको बता देना, ये ऐसे-ऐसे करो हम मरे, ऐसे करो, ऐसे करो। सो ऑलवेज टेक्स ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स हमेशा लेते रहना चाहिए। जो व्यक्ति ब्लेसिंग्स लेता नहीं है ना, वो व्यक्ति कभी विजयी नहीं होता। और जो व्यक्ति ऐसा घमंड में रहता है ना, वो ज्यादा टिकता नहीं। अगर वो जीत भी जाए, लास्ट में अकेला रह जाएगा। जैसे देयर आर सो मेनी पीपल नाउ इन दिस वर्ल्ड हु हैव लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी, बट डिप्रेशन में, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बात किससे करे, कुछ भी नहीं। क्यों? कभी आशीर्वाद नहीं लिए, हमेशा ऐसा ईगो में ऐसा। बट युधिष्ठिर महाराज ऑलवेज टुक ब्लेसिंग्स, वो सबसे ज्यादा ब्लेसिंग लेते। और इसीलिए ही वाज ऑलवेज प्रोटेक्टेड। इतना सब होने के बाद भी वो हमेशा आगे रहते थे, प्रोटेक्टेड रहते थे। एंड आगे क्या बोलते हैं, व्हाट यू हैव डन हैज प्रोड्यूस्ड अ प्रॉब्लम फॉर अस नाउ। तो देखो, दुर्योधन है इनडायरेक्टली द्रोणाचार्य को गाली दे रहे हैं कि देखो आपने जो पहले किया ना, अभी हमारे प्रॉब्लम हो गया है। कैसा कर डिसीजन है? तो एक्चुअली ये हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर डिसरेस्पेक्ट सीनियर्स। सीनियर से गड़बड़ हो सकती है, बिकॉज ऑल आर ह्यूमंस। और जब कोई डिसीजन लेते हैं ना, उस समय सब चीजें हमारे साथ में नहीं होती, हमें सब पता ही नहीं होता सब कुछ। बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो उस समय हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। वी डोंट हैव एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग, बट वी हैव टू टेक डिसीजन। डिसीजन पोस्टपोन नहीं कर। जैसे इफ समबडी इज टेकिंग एडमिशन इन कॉलेज, तो कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले हम सिर्फ पता है आर्ट्स कॉमर्स साइंस क्या है, उसके अंदर हर एक सब्जेक्ट में थोड़ी हमने पढ़ा है। वी हैव नॉट रेड एवरीथिंग, वी आर जस्ट रनिंग। हाँ, ये शायद अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा। हमने थोड़ा 100% पढ़ा है, बट हम कुछ तो डिसीजन लेना है, तभी वी हैव टू टेक सम डिसीजन विच वे टू गो। वी कैन नॉट बी, ऐसे तो घूम नहीं सकते। तो इसलिए कुछ तो डिसीजन लेते हैं और बाद में सोचते अरे क्यों ये लिया मैंने, कॉमर्स में क्यों, साइंस में गया होता तो कितना अच्छा होता। सो अ गुड पर्सन इज वन हु फाइंड्स फॉल्ट विद हिमसेल्फ। जो आदमी खुद में फाइंड फॉल्ट करता है ना, वो ग्रो होता है। और जो आदमी दूसरों में फाइंड फॉल्ट करता है, सामने वाला ग्रो होता है। और इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दुर्योधन जो है ना, वो किस पे निकाल रहा है दोष? द्रोणाचार्य का गलती निकाल दे, तुमने ये गड़बड़ की, ये गड़बड़ की, ये गड़बड़ की। और इसलिए दुर्योधन ग्रो नहीं होगा। कौन ग्रो हो रहा है? युधिष्ठिर महाराज ग्रो होंगे, अर्जुन ग्रो होंगे, क्योंकि वो दूसरों की गलती निकालती नहीं। वो पूछते अरे हम क्या करें आपके लिए, व्हाट शुड वी डू टू ग्रो, व्हाट शुड वी डू टू डू बेटर थिंग्स। और इसलिए इन लाइफ there are two ways of looking things. One is to find the problems in others, one is to rectify ourselves. ये इसमें से जहां हम जाएंगे वो चीज ग्रो होगी। जब हम दूसरे के प्रॉब्लम्स देखेंगे, सामने वाला ग्रो होगा, हमारा डाउनफॉल होगा। और जब हम उल्टा करेंगे, हमारा ग्रोथ होगा, सामने वाले का तो अगर उसके ऊपर डिसाइड है कि क्या होगा। ओके, आई थिंक इट्स 28:55 हो रहा है। आई विल स्टॉप हियर फॉर सम क्वेश्चंस। वी विल सी फ्रॉम वर्स नंबर 4 to 6 इन नेक्स्ट सेशन। I hope you enjoyed the class and you got some very practical lessons. आपको शायद कुछ अच्छे lessons मिले होंगे जो आप use कर सकते हैं। अगर मेरे pronunciation में, मेरे words में या कहीं ऊपर-नीचे हुआ होगा तो I am very sorry, because I have also my own limitations. So if you have any doubts or कुछ question या doubt है तो we can take for next 3-4 minutes. जो भी अपने पास time है उसमें हम ले सकते हैं। If you have any doubts, any concerns, any comments you want to share, any reflections you want to give apart from asking questions. See, we have interaction section, ये हमारा interactive है, and I see all of you as next generation leaders. मैं देखता हूँ कि आप लोग है ना हमारा future हो। So as a leader, as a future generation person, we will discuss most of the things, and if you have something to share, if you want something to tell, so it's always open. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने अभी बोला ना कि in life there are two ways to looking things. So what are those two things? I wanted to note it. In every situations, जो भी हमारे सामने सिचुएशन में, एक तो हम सामने वाली गलती देखें, या तो हम खुद कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं वो देखें। सो सामने वाली गलती देखेंगे तो इंप्रूव नहीं होंगे, लेकिन खुद को जहां बढ़ना है वो देखेंगे। भले सामने वाले का मिस्टेक हो, उसको नजरअंदाज कर तो खुद स्ट्रांग बनेंगे। लाइक आई विल गिव यू वन एग्जांपल। सपोज मैं क्लास दे रहा हूँ, और क्लास के समय क्या हो रहा है, मेरा प्रेजेंटेशन भी खराब है
और सामने सिस्टम भी खराब है, इंटरनेट खराब है, ये खराब है, वो खराब है। लेकिन अगर मेरा प्रेजेंटेशन सुधारता नहीं हो, सामने बता रहे इंटरनेट की वजह से खराब प्रेजेंटेशन हो रहा है, ये पीपीटी अच्छा नहीं है इसलिए खराब हो रहा है, ये होस्टिंग अच्छा नहीं कर इसलिए खराब, तो क्या होगा? आई विल नॉट इम्प्रूव। अभी सही है गलत है दैट सेकेंडरी, हो सकता है सही में इंटरनेट खराब है, सही में सिस्टम सब खराब है, वो अलग है। लेकिन अभी मैंने क्या फोकस किया, सामने वाला फोकस किया, तो मैंने बोला मेरे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, तो मैं ग्रो नहीं होता। लेकिन जब मैं देखता हूँ ऐसा, ठीक है सिस्टम में होगा, लेकिन उसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं, बट व्हाट कैन आई इम्प्रूव इज I can improve my presentation. I can improve my vocabulary. I can present myself in a way. सिस्टम खराब होगा तो भी उसके थ्रू कुछ तो बच जाएंगे सामने वाले को, और बाद में अगर ये सब इंप्रूव हो गया तो मेरा परफॉर्मेंस 2-3 गुना बढ़ जाएगा सीधा। So the two ways of looking thing is either you see problem in others or either you see problem in oneself. One who sees problem in oneself and improves is the one who becomes a leader, who becomes a person who can change something in the world. ये कहना बहुत आसान है कि दुनिया खराब है, लेकिन उसमें हमारा कुछ सहभाग्य है, ये हम कभी बताते नहीं किसी को कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। आई विल गिव वन एग्जाम्पल। एक बार एक जंगल में आग लगी और उस जंगल में एक बंदर था और एक चिड़िया थी। चिड़िया क्या कर रही थी, अपने बीक में एक एक बूंद डाल के आग में डाल रही थी, और बंदर देख के हंस रहा था। वो कह रहा था, अरे आपको क्या लगता है आपके एक एक बूंद पानी से क्या है आग पूरी बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने कहा कि ये आग तो बुझेगी नहीं, लेकिन जब हिस्ट्री लिखी जाएगी ना तो लिखा जाएगा कि ये बंदर ने आग लगी थी तो आग के साथ काम किया, उसने कुछ बुझाने में मदद नहीं की, लेकिन एक चिड़िया ने आग बुझाने में मदद की। एंड देयरफॉर माय नेम विल बी ग्लोरीफाइड इन हिस्ट्री। आई डोंट वांट माय नेम टू बी, मेरा नाम खराब नहीं करना चाहती मैं, और इसलिए मैं कर रही हूँ। सी द डिफरेंस इन द पर्सपेक्टिव। चिड़िया क्या करेगी, उसके बूंद बूंद से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आग वैसे रहेगी, बट सी द एटीट्यूड, सी द कन्विक्शन एंड सी द थिंग्स हाउ इट गोइंग। तो दिस शुड बी देयर इन अवर लॉन्ग रन। भले अभी हमारा शायद नहीं हो, जब एक्चुअल सिचुएशन आएगी शायद हम भी वैसे ही बिहेव करते हो, बट अगर हमारा वैसा व्यू पॉइंट रहेगा ना तो ग्रेजुअली विल इंप्रूव। सो इंप्रूवमेंट इज नॉट अ डेज जॉब, इट्स अ इयर्स ऑफ जर्नी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक दिन का काम नहीं है, सालों का जर्नी है। एवरी ईयर इट एड्स, एवरी ईयर इट एड्स। हमारे बाउंड्रीज, मेंटल बाउंड्रीज, हमारा थिंकिंग, हमारा विलिंग, बहुत कुछ चेंज होते रहता है हर साल, एंड दिस हाउ वी शुड ग्रो। I hope you understood. Any more doubts or questions? We can do it. Hare Krishna. See, any problem has immediate cause and a remote cause. So immediate cause और remote cause क्या होता है? Immediate cause में कैसा है, समझो अगर हमने किसी को थप्पड़ मारी तो उसने जोर से हमको थप्पड़ मार दी, तो ये इमीडिएट कॉज हो गया। अगर आप मारते तो सामने वाला मारता नहीं। बट साथ में एक रिमोट कॉज भी होता है, आपके अंदर ये इच्छा कैसे है थप्पड़ मारने के सामने वालों को? हाउ डिड द फर्स्ट एक्शन टुक प्लेस सामने वालों को मारने के लिए? दिस हैपेंड बिकॉज आपका अंदर का वायरिंग ऐसा था, उसको देख के आपके अंदर गुस्सा आया, उसको देख के आपको लगा इसको तो मारना चाहिए। सो इसको हमें चेंज करना चाहिए, और इसलिए इस पे हमें वर्क करना चाहिए। एंड देयरफॉर दिस रिमोट कॉज इज मोर इंपॉर्टेंट इमीडिएट कॉज। हर चीज का जो सामने दिखता है वैसा नहीं होता, उसके पीछे क्या चल रहा है वो हमें पता रहेगा, उतना ज्यादा अच्छा, उतना हम इंप्रूव कर सकते हैं। So everything which happens in our life has some immediate cause, but ultimately उसके पीछे और बहुत सारे causes जो हमको नहीं पता। देखो हमको जो माँ बाप मिले, हमको दिखते ही मिले, लेकिन यही क्यों मिले? हमें भाई बहन ऐसे ही क्यों नहीं मिले? हमारा चेहरा, हमारा स्किन कलर, ये बहुत सारी चीज, who is deciding this? How did we got this all these things? इट डजंट, ये इसका कोई इमीडिएट कॉज, इसका कोई ये नहीं, इसका रिमोट कॉज है पीछे जन्म के हमारे क्या कर्म है,
हाउ डिड वी हैड अंडरस्टैंड विद पीपल एंड ऑल, उससे हमारा डिसाइड हुआ कि ये जो हमारा अभी का कर्म है वो हमारा बॉडी कैसा रहेगा, हमारा चश्मा कैसा रहेगा, बहुत सारी चीज कैसे रहेगी वो रिमेंबर, एंड देयरफॉर वी शुड ऑलवेज, हम लोग को हमेशा उसी पे फोकस करना चाहिए। और इसीलिए समथिंग कॉल्ड श्रेयस एंड प्रेयस, इमीडिएट जो क्या मिलेगा फल और लॉन्ग टर्म में क्या मिलेगा उस पर ध्यान रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कंटेम्पलेट लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट क्या होगा, लॉन्ग टर्म में इससे क्या फायदा होगा, और उसके हिसाब से हमें प्रेजेंट डिसीजन लेना चाहिए। अगर हम इस तरह चलते हैं ना तो हम लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। वी कैन ग्रो वेरी फास्टर एंड वेरी मैच्योरली इफ वी सी द फ्यूचर एंड टेक डिसीजन नाउ, एंड दैट इज द वे हाउ ब्राह्मणास वर्क। ब्राह्मणास जो काम करते हैं ना, एंड इवन द प्रीवियस जनरेशन वो कैसे काम करते थे, वो देखते थे अभी जो मैं डिसीजन ले रहा हूं ना इसका 10 से 20 साल में क्या प्रभाव पड़ेगा। सो कभी भी कोई दवाई इन्वेंट करते थे, कुछ भी इन्वेंट करते थे ना, तो पहले 20 साल तक वो खुद पे प्रयोग करते थे, 20 साल तक देखते देख सकते, और देन ओनली वो मार्केट में डालते थे। अभी तो हमारा सिस्टम पूरा चेंज हो गया, अभी तो पहले मार्केट में डालते, फिर उसका आता है कि इसका ये तो साइड इफेक्ट था, ये साइड इफेक्ट था, ये साइड इफेक्ट था, और इसलिए अभी आप लेना बंद कर दीजिए। बट दैट वाज नॉट द केस विद द जो पहले के लोग थे वैसे नहीं करते थे, या जो इंटेलिजेंट लोग थे, पहले भी कुछ लोग थे जो अच्छे थे कुछ खराब थे, जो इंटेलेक्चुअल ऐसे नहीं करते थे। सो देयरफॉर इन एनीथिंग व्हाट वी डू वी शुड ऑलवेज लुक ऑन द फ्यूचर एंड देन ओनली टेक डिसीजन, देन हमारा जो जीवन है वो सफल रहेगा। आई होप यू गॉट द आंसर, और इज देयर एनी डाउट और फर्दर क्लैरिफिकेशन? एनी मोर क्वेश्चंस और डाउट्स, या कुछ और कुछ बोलना है? ध्रुव, यू आर सेटिस्फाइड? Prabhuji, so now we should end for today. Yeah, so I think we are done for today. We'll close and decide on the next class. Thank you very much. Hare Krishna.